discussed with the 2-3 indices regarding the development measurement. Now we are moving to the next measurement of economic development. No doubt it is not a measure of development, but it is the combined, we can say, indice. Later on it became indice, but earlier it was just a development concept which included into the environment concept. Okay, it is very much important because it will consist many of the alternative topics in between the SDG, as well as इसमें से आपको बहुत सारे questions or committees or the programs you will get. Okay, so please keep in the mind whenever we will writing something, please keep writing. Okay, so we said that as we were measuring the economic development, can you please explain? Get up. What's your name? Shaurya. Get up. जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स तक आने तक उससे पहले हमने कौन कौन से इंडेक्सेस के बारे में बात की है? HDI was the latest one. Before that, do we have any index? Can you explain? HDI तो before, पहले. Perfect. PQLI, HDI, IHDI, gender inequality index is the sum up of two indices. Which are the two indices? Gender development index and gender empowerment measure. उन दोनों का सम टोटल बन के GII बना था. ठीक है, एंड उसके बाद क्या आया? ग्लोबल गैप इंडेक्स. कल क्लास में नहीं थे आप? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. Done. So, will the meanwhile we have gone through with the various indices, which is some of related with. Now you can see the changing time. Initial years we were talking about the development is only and in only economic terms, सिर्फ per capita income और सिर्फ GDP. सेकेंड टाइम पर जब हमने अपने प्रोस्पेक्ट को चेंज किया, हमने उसमें हेल्थ एजुकेशन को ऐड करना शुरू कर दिया. फिर उसके बाद जब डेवलपमेंट आई, हमने कहा नहीं, ओनली हेल्थ एंड एजुकेशन कैन नॉट मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी नीड टू सी वेदर इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हमने इनइक्वालिटी को भी इंपॉर्टेंस दिया, जिसमें हमने IHD की बात की. फिर हमने कहा ठीक है, इट्स ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी सेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, you are talking about inequality, but inequality should also measure in the concept of gender. फिर हमने gender inequality index बना लिया. अभी they said that if you want to measure the economic development, we should use a development with the concept of sustainable development. Sustainable development said it meets the needs at present without harming or compromising the needs of the future generation. तो अभी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, जिन रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी यूटिलाइज इन सच अ वे सो दैट इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर जनरेशन. हम उतना रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉयटेशन ना कर दें कि आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहे. सो दैट इज व्हाइल यूजिंग अ सस्टेनेबली, if we are moving on the path of development, is called a sustainable development. Okay, so a very strict line regarding to the development. Write down the development which meets the need of present, development which meets the needs of present without compromising the ability of future generation. Without compromising the ability of future generation, आने वाली जनरेशन उसके यूज को कॉम्प्रोमाइज ना करे, टू मीट देयर ऑन नीड्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स of their own, to meet their own needs, उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने में किसी भी चीज का गैप नहीं रहना चाहिए. गेटिंग?
Now we are starting with the sustainable development. Otherwise, we are talking about sustainable development, only sustainable development. So this is only the meaning of sustainable. Are meeting the needs at present generation without compromising to meet the need of future generation. जो हम आज यूज कर रहे हैं, जो हमारी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हो रही है, वो इस तरह से इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए कि वो आने वाले जनरेशन की नीड्स को compromise करवा दे. Now they said that first of all, before going to the sustainable development goals क्या होते हैं, before going through sustainable development goal की history क्या है, हमें sustainable development की जरूरत क्यों है? To save our resources for future generation. Okay. Anything else? Scarcity of resources. Very nice. Good. कुछ और? Proper allocation of resources. Good. It is economics only, है ना? Resources are limited and it is alternative uses. We have to use in such a way so that it can be utilized by the future generation as well. तो हमने अपनी needs, क्यों हमें sustainable development की जरूरत पड़ी? We are dividing into the three parts basically. The first one they said it is a climatal changes. क्योंकि हम कुछ भी ना करें, हम resources का भी utilization ना बढ़ाएं ना घटाएं, फिर भी जो climate changes आ रहे हैं, वो हमारे resources को exploit कर देंगे. Isn't it? The one change in climate change is increasing temperature. जो temperature increase कर रहा है, वो somewhere somehow it is affecting the many species and it will affect the future generation too. क्योंकि अगर एक जो life cycle में से अगर एक species हट जाएगी, तो क्या होगा? वो लाइफ साइकिल जो है वो ब्रेकअप कर जाएगा, फूड साइकिल जो है वो ब्रेक कर जाएगा, जिससे अगले वाले जो नेक्स्ट उसको लेने वाला कंजम्पशन करने वाला एनिमल है या स्पीशीज है, उसके भी साइकिल को खराब कर देगा. सो समवेयर समहाउ many of the species are declining, deteriorating, decreasing, degrading. So we need to have a main check on the climate change. इसका मतलब हमें नीड क्यों है SDGs की? पहला है हमारा क्लाइमेट चेंज. Under climate change, I have taken the two words. It's the first thing is increase the atmospheric temperature. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है. टेम्परेचर के बढ़ने से क्या है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्रिएट होती हैं. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो है वो हमारी किसी भी एक्सप्रेशंस को इफेक्ट करती हैं एंड इट क्रिएट ब्रेक द फूड साइकिल. सेकेंड रीजन इज राइजिंग सी लेवल. जो हमारा सी लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है. उससे क्या होगा? सी से थोड़ी फ्लड आता है. वेरी नाइस. जो हमारे स्मॉल आइलैंड्स हैं वो वैनिश होने की कगार पर है. अगर सब तरफ से पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो जो छोटे छोटे टापू हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो पानी में समा जाएंगे. तो समवेयर समहाउ इनहेबिटेंट जो एरिया है वो खत्म हो जाएगा ना, जहां पे लोग रह रहे हैं, जो एरिया चल रहा है वो खत्म हो जाएगा. सो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि वो सी एरिया लेवल जो है, जो सी लेवल है वो बढ़े ना. कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़े ना. तो जो हमें ना सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जेंडर के डिफरेंस को देखकर, बल्कि एनवायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर वो नहीं होगा तो हमारी एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल. तो पहली चीज इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सेकेंड इज इंक्रीजिंग इन सी लेवल. दीज टू रीजंस कम अंडर द क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज एक पहली चीज है जो हमें इस तरफ सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आप अपने डेवलपमेंट में इसको भी कुछ रोल प्ले करने के लिए दो. सेकंड इज योर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब रिसोर्सेज जो है वो कम है और कम होते जा रहे हैं. इट मीन्स टू से दैट द वन इज द फूड प्रोडक्शन needs to be double in next 40 years. हमारी जो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है वर्ल्ड इकोनॉमी में, the need of food is increasing by 40%. It means the need of food to double over next 40 years. In 40 years में हमारी जो need of food है
will double in next coming 40 years. तो हमारे पास क्या वो लैंड बढ़ रही है? लैंड कम हो रही है। 25% लैंड जो वो डिग्रेडेशन में की तरफ बढ़ गया है। तो विद इन द कमिंग व्हेन द वर्ल्ड एवरेज, एक चीज तो हो गई कि आपकी नीड ऑफ फूड ग्रेन्स विल बी डबल्ड इन नेक्स्ट 40 इयर्स, बट द प्रोडक्टिविटी और द लैंड इज डिग्रेडिंग। लैंड की जो वैल्यू है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो डिग्रेड हो रही है, और 23% लैंड या 25% लैंड है जो वो हमारी डिग्रेड हो चुकी है, जो प्रोडक्टिविटी के लेवल के लिए अब नहीं बची है। 23% ऑफ द लैंड इज बिकम्स टू बी 23% कर लीजिए, 23% ऑफ लैंड इज डिग्रेडिंग इन द कमिंग ईयर्स। तो ये दोनों नीड ऑफ लैंड बढ़ रही है, फूड की डिमांड तो बढ़ रही है, जबकि लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। इस वजह से हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि कैसे आने वाली जनरेशन को हम कम से कम फूड तो अवेलेबल करा सके। सेकेंड रीजन इज 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन is not able to use a clean water, या water scarcity will be living in clean water scarcity by 2050। आने वाले 30 सालों तक, जो हमारे 25 तक भी कर सकते हैं, हमने तो वैसे ये चीज अपने इंडियन इकोनॉमी के गोल अलग है, इंटरनेशनल लेवल के गोल्स अलग हैं, वो हम आगे जाके आपसे बात करेंगे कि क्लीन वाटर स्कैर्सिटी विल बी इंक्रीज्ड, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी लिविंग विदाउट क्लीन वाटर स्कैर्सिटी बाय 2025। तो ये पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, सो वी नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू सर्वाइव अ फ्यूचर जनरेशन। पहले तो एनवायरनमेंट खराब कर रहा है, वो हमें रहने नहीं देगा। दूसरा, हमारे पास ना खाना है ना पानी है, वो हमारे पास रहने नहीं देगा। और जो तीसरा चीज है वो क्या है? इकोनॉमिक्स की थर्ड थिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं अभी, उनका हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो पहली बात तो रिसोर्सेज कम है, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? 1 मिलियन स्पीशीज आर ट्रैक्ड टू बी डिसअपियर। आने वाले टाइम में कितनी ही जो हमारी स्पीशीज हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, ट्रैक टू बी डिसअपियर्स। सेम एज वी कैन से द फर्दर इज डिक्रीज इन मोर देन 60% वर्ल्ड मेरीन फिशेस। क्लीन वाटर फिशेस जिसे बोलते हैं, वो हमारी जो है वो फिशरीज जो है वो स्लो डाउनली खत्म होती जा रही हैं। ये डिक्रीज होने से क्या होगा? अगर फिशेस खत्म हो जाएंगी, क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? वही हम शुरू में बात कर रहे थे। स्पीशीज भी अगर 1 मिलियन स्पीशीज जो है वो गायब हो जाएंगी, यू मस्ट हैव सीन कि अभी स्पैरोज नहीं दिखती हैं, कम हो गई हैं, तो वो सब में समहाउ पहले थी, अब वो कम हो गई। इन द वन से वी कैन से, अगर आप लोगों ने जस्ट ऑन द लाइटर साइड, डोंट टेक इट इनटू इकोनॉमिक्स, इफ हमने डायनासोर्स नहीं देखे तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? हुआ कुछ, लेकिन उस टाइम पे हैबिटेंट्स नहीं थे ना, तो वही सिस्टम था। अगर हमने कोई ऐसा, जैसे हम कहते हैं सेव टाइगर, तो टाइगर सेव नहीं होगा तो क्या होगा? इकोसिस्टम खराब होगा। वेरी नाइस। अगर अभी हमारे जो स्पैरोज हैं वो डिसअपियर हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है?
जो हमारी क्रॉप्स थी जिसमें से वो उसमें से पेस्ट्स को पॉलिनेशन का हेल्प करती थी, और जो स्पैरोज जो उसमें से इंसेक्ट्स को ईट करती थी, वो खत्म हो गया। अब हमें पेस्टिसाइड्स डालने पड़ रहे हैं। पहले स्पैरोज इंसेक्टिसाइड्स को इंसेक्ट्स को खा लेती थी। तो समवेयर समहाउ दैट फूड चेन और फूड सिस्टम जो है वो इकोनॉमी को सर्वाइव कराने का रीजन होता है। तो अगर ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो इट इज समवेयर समहाउ अ डेंजर फॉर इकोनॉमी। तो 3 रीजन हो गए कि हमें कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल थॉट देना पड़ेगा, दैट it may be required for the ourself, it may be required for the economic। चाहे वो मॉनेटरी सेंस से देख लो, अगर ये नहीं होंगी तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट इनकम। अगर ये जमीन ही नहीं है और ये खाने के लिए खाना ही नहीं है तो हाउ यू विल सर्वाइव। और अगर पानी का लेवल बढ़ जाता है या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी वी कांट सर्वाइव, तो हमारी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। सो समवेयर समहाउ दीज ऑल थिंग्स आर इफेक्टिंग द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जहां पर हो वहीं रुक जाओ। इससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो आने वाली जनरेशन रहेगी नहीं, और रहेगी तो वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। दैट्स द रीजन वी गॉट टू नो दैट वी नीड समथिंग व्हिच इज टू बी सस्टेन द इकोनॉमी, एंड दैट सस्टेन कैन लीड्स टू अ इन्वायरमेंट। वो कहां से आना चाहिए? इन्वायरमेंट के रूटीन से आना चाहिए। सो दैट्स द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेट्स मूव फर्दर। ये हमने बात की कि हमें जरूरत क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अभी उन्होंने जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी स्टार्ट की, just wait, then they said that we need 3 kind of sustainabilities। किस किस तरह की? इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। The sustainability should be further for the 3 basic reasons. One is for the growth, second is for the economy, third is for the environment। तो हमें 3 तरह की कोर सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। पहली कौन सी? एक तो इकोनॉमी ग्रो करे, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग इज गोइंग ऑन, वी नीड इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी ऑल्सो फेवरेबल टू द एनवायरमेंट, सो हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए। थर्ड इज लाइक एनवायरमेंट में रहने वाले कौन है? हम लोग हैं, तो हमारी सोशल सस्टेनेबिलिटी चाहिए। सो वी नीड अ 3 काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी व्हिच कैन लीड्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वी आर मूविंग टू द 3 कोर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अभी इट कैन, यू कैन राइट डाउन इफ यू वांट, बट इफ यू I mean to this is the crux, so you can write down। हमें 3 कोर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या है हमारे? पहला है हमारा 3 कोर्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज economic sustainability, second is environmental sustainability, and third one is social। डन। तो 3 काइंड ऑफ जो कोर एलिमेंट्स है सस्टेनेबिलिटी की, जो इन 3 मेन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट वन दे सेड दैट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या कहती है? अगर आप इकोनॉमी को सस्टेन करके रखना चाहते हैं, इकोनॉमी को सस्टेन करने का मतलब क्या है? कि जो आपके पास है कम से कम वो बचा रहे, इट शुड स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज का। जब कोई अंडरडेवलप इकोनॉमी होती है वो क्या चाहती है? डेवलपिंग, कि मैं डेवलपिंग के पाथ पे आ जाऊं। डेवलपिंग इकोनॉमी क्या चाहती है? कि मैं डेवलप्ड हो जाऊं। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या चाहती है? स्टेबल हो जाऊं, जो मैंने अचीव कर लिया उससे वापस ना जाऊं, ऊपर तो ऑब्वियसली जाऊंगा विद रिसोर्सेज, बट आई शुड सस्टेन माय पोजीशन, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज फॉर द डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो वो कहते हैं इट इज नो डाउट, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, देन वी विल से कि अल्टीमेटली जो स्टार्ट किया गया था ना, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज की तरफ से स्टार्ट किया गया था। ये डेवलप्ड इकोनॉमीज का एजेंडा था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करो। जो एक इकोनॉमी ऑलमोस्ट ऑन द अर्ज ऑफ क्लैप्स है,
उसको सस्टेनेबिलिटी कहां से सोचेगा? वो स्पीशीज को बचा ले और पानी को बचा ले, वो तो he was not aware about it and don't want to do it. They wanted food and shelter should be provided to my society. उसके लिए मेन मुद्दा क्या होगा? इकोनॉमिकल स्टेबल हो जाऊं. तो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद में आती है, बट स्टिल एज इट इज बिकम ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज बन गई, यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक एजेंडा बना दिया, तो एवरी कंट्री, चाहे वो डेवलपिंग है चाहे अंडर डेवलप है, उनको वो एजेंडास को फुलफिल करना पड़ रहा है. बट अदरवाइज ये सस्टेनेबिलिटी जो था वो समवेयर समहाउ डेवलप्ड इकोनॉमीज का पर्सपेक्टिव था. डन. सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या? एक तो इट शुड बी इक्वल, इक्वालिटी अगर आएगी तो ही सस्टेनेबिलिटी रहेगी. अगर आप कहें कि अंबानी, टाटास, बिरलास और सारी इकोनॉमी एक साइड, तो वो सस्टेन नहीं रह सकते. समवेयर समहाउ यू विल गो फॉर अ रिवोल्ट. आप कभी ना कभी रिवोल्ट करोगे, उनके अगेंस्ट जाओगे और इकोनॉमी क्लैप्स हो जाएगी. लेकिन अगर सारे लोग एक जैसे हैं, बराबर से हैं, तो वो इकोनॉमी लॉन्ग टाइम तक चल सकती है अगर सबको सेम अधिकार मिले हुए हैं. दैट्स व्हाई दे सेड दैट मेन इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी इक्वालिटी. इक्वल इनकम टू ऑल, equal health education to all, less poverty, and economic institutions should be strong. उनमें biasness ना हो. तो write down the 2-3 points in this: equal economic growth and wealth for all. सबको इकोनॉमिक ग्रोथ का इक्वल हिस्सा मिले. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ फॉर ऑल. सेकेंड, इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. ऑब्वियसली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब हुई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई. इरेडिकेशन पॉवर्टी, eradication of poverty from all dimensions and equal distribution of resources. अगर ये सारी चीजें इकोनॉमी को मिल रही हैं तो इकोनॉमी सस्टेन करेगी इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से. क्या हो गया? सारे ब्लैक वाले मार्केट्स कहां चले गए? Getting? So this is economic stability. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमी को हायर लेवल ऑफ ग्रोथ पे लेकर जाओ और उसको सस्टेन करो. अब ये थोड़ा सा हमें लर्न भी करना है, सिर्फ लिखना नहीं है. अगर पॉवर्टी रिड्यूस होगी तो सब इक्वल हो जाएंगे. तो पहली बात क्या होगी? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स. जब पॉवर्टी खत्म हो गई तो इक्वालिटी आ जाएगी. इक्वालिटी आएगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा. जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. ऑल पॉइंट्स आर देयर. सबसे पहले क्या किया हमने? कहा अच्छा, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. हमने सबसे पहले पॉवर्टी खत्म की. पॉवर्टी खत्म की, इसका मतलब आपने सारे पैसे सबको बराबर बांटे. जब बराबर बांटे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई. तो आपको ऐसे याद करना है विद द स्टोरी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें क्या चाहिए? पॉवर्टी को रेडिकेट करना है. पॉवर्टी रेडिकेट करोगे तो सबको रिसोर्सेज बराबर बांटोगे. रिसोर्सेज बटेंगे तो इक्वालिटी हो जाएगी. इक्वालिटी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. तो ये 4 पॉइंट हमारे इकोनॉमिक के अंदर आ रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. वो कहते हैं एक तो मेन है इंश्योर हेल्थ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम. sustain or ensure the health, ensure भी कर सकते हो, and preserve the ecosystem. इकोसिस्टम में क्या क्या आ रहा है? क्या क्या आता है इकोसिस्टम में? इधर इट इज yes related to all the spheres of economy. So वो चीजें बचा के रखनी है, सिर्फ इन करनी है. सेकंड क्या है हमारा इकोसिस्टम के अंडर? इसको अगर लिखना भी है तो आप लिख दो हमारे सारे फॉरेस्ट आ गए, हमारे ओशंस आ गए. गेटिंग? तो all we can take it is like your wetland and biodiversity.
ये सारे इकोसिस्टम के रिसोर्सेज हैं जिनको आपने बचाना है, ठीक है। वही तो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी हुई, जितने फॉरेस्ट हैं वो बचे रहें, जितना ओशंस हैं वो बचे रहें, सूख ना जाएं, वेटलैंड एरियाज हैं वो बचे रहें ताकि उस पर प्रोडक्टिविटी हो सके। हमारे बायोडाइवर्सिटीज जो हमारे केमिकल रिसोर्सेज हैं दैट शुड बी सेफगार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। सो दीज ऑल द बेसिक biodiversities which can be preserved, and if they will be preserved we will sustain to the good health of economy. So we can say ensure the protection and the rationalism, इसको छोड़ दो, saving water and investment in renewable energy. ये वैसे यहाँ बायो ओशंस में आ गया, सेविंग वाटर एंड वाटर को सेव करने जो ऊपर ओशंस में आ ही गया, लेकिन वो ओशन वाले वाटर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम ड्रिंकेबल वाटर की, क्लीन वाटर की, फ्रेश वाटर की बात करें। सो सेविंग वाटर एंड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है जी? रिन्यूएबल जिसको दोबारा जनरेट कर सकते हैं। कौन सी हो गई? सोलर, विंड, थर्ड वन इज हाइड्रो। तो ये तीन वाली जो एनर्जी है जिसको रीजनरेट कर पा रहे हैं, जबकि हमारे फॉसिल फ्यूल्स और कोल वाले क्या है, वो डिग्रेडेबल है, वो बायोडाइवर्सिटी वो क्रिएट नहीं कर पाते, वो डैमेज हो जाते हैं आफ्टर वन यूज। सो हमें ऐसी चीजों को क्रिएट करना है, ऐसी चीजों को बचाना है कि जो हमारी ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रही है जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज को बचा के रखें। क्योंकि अगर आप बायोडाइवर्सिटीज को यूज करते रहोगे तो समडे समहाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा, सस्टेन नहीं होगा। इनकी हेल्प से आप उसको सस्टेन कर सकते हो। फ्रेश वाटर को अगर सेव करते हो तो आप सस्टेन करोगे, नहीं तो वो अगले 25 साल 25% लोग जो है बिना पानी के रहेंगे। तो दैट इज अ स्टोरी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसमें क्या क्या चीजें आ गई वैसे याद रखो। एनवायरमेंट में क्या आएगा? एक तो हमारे बायोडाइवर्सिटीज को बचाना है, इकोसिस्टम को बचाना है। इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आ गया? फॉरेस्ट, आइलैंड्स, ऑल अदर थिंग्स। और ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी करना है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जीज एंड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज। फर्दर जो फर्स्ट पॉइंट था, अच्छा ये दो ही पॉइंट्स हो गए, दैट्स इट, दिस इज ऑलमोस्ट डन। एनवायरमेंट को बचाना है जैसे भी बचाना है। द थर्ड वन इज द सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोसाइटी में इक्वालिटी कैसे लाएंगे? सोसाइटी जहां पर है वो वैसी कम से कम रहे, कैसे हो सकता है? इक्वालिटी अगर आएगी, है ना, इक्वालिटी की बात हमने यहां पे कर ली। हाउ कैन वी गो फॉर मोर इक्वालिटी? जेंडर। अगर हम जेंडर की इनइक्वालिटी को बचाते हैं देन वी कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर सेक्स रेशियो डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम तो वो फिर फ्यूचर हमारा सेव नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज फॉस्टर जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटी एंड द कल्चर। फॉस्टर द जेंडर इक्वालिटी। एक तो जेंडर इक्वालिटी लेके आओ ताकि इकोनॉमी में फीमेल मेल के बीच में गैप ना आए, तो सोसाइटी फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, इसमें दो चीजें आ गई, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि ये ना हो कि आने वाले टाइम में कोई एक स्पेसिफिक जनरेशंस खत्म हो जाए, है ना। तो वो इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी देयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। DEV stands for development of communities and culture. That is also required. Some cultures को preserve करके रखना हमारे लिए important है. That creates distinct feature of any nation and that can leads to economy to the development path. So हमें ये तीन चार चीजें जो हैं, जो requirement हमें चाहिए, वो नीड थी, क्यों चाहिए, ये हम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कोर एलिमेंट्स रहेंगे। अभी आप ये देखेंगे, इसको एक बार दोबारा देखिएगा।
आप देखेंगे जब हम एसडीजीज की बात करेंगे उसके सारे गोल वो इसी में से निकल के आएंगे, क्योंकि हमने इकोनॉमी को इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट। तो जो हमारे 17 गोल्स हैं उसमें से 6 गोल जो है वो एक रिगार्डिंग है, 5 गोल्स हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव को रिगार्डिंग है, 3 गोल है एक रिगार्डिंग है, एक गोल अलग है टेक्नोलॉजी का, एक कल्चर का अलग गोल है। तो वी हैव डिवाइडेड द सेम 17 गोल्स आउट ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स। हमारे इसी में से सारे गोल्स निकल के आने वाले, ठीक है। तो ये समझ के रखिएगा, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट। डन। Now we will move to the actual history of SDGs. Start कहां से हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हिस्ट्री ऑफ SDGs, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि नहीं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए इकोनॉमी में, हमें सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहिए या हमें जेंडर डेवलपमेंट नहीं चाहिए। सो दे सेड दैट इट वाज इन 1972 व्हेन वी फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट टू गो फॉर सम एनवायरमेंटल इश्यूज। पहली बार हमने 1972 में ये थॉट लिया एंड उस थॉट में हमने UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर ये प्लान आउट किया कि दैट वी नीड टू हैव समथिंग टू थिंक अबाउट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। उस एजेंसी का नाम UNEP नाम से वो बनी, जिसने वो स्टार्ट किया, डेवलप्ड नेशंस के ने पार्टिसिपेट किया एंड दैट वाज इन द स्टॉकहोम। That was a Stockholm conference भी बोलते हैं। In 1972, the Stockholm conference was there, which started the initiating of environmental discussions into the international level. And there was almost like more industrialized countries in initial years. क्योंकि 1972 में तो economies were not in the very good stage. इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान, एशियन इकोनॉमीज तो बहुत डिप्रेस थी। तो उस टाइम पीरियड पे हमने उनके मेंबर बनने का या उस थॉट में अपने आप को इंडल्ज करने का नहीं सोचा था। वी जस्ट हैड गॉट इंडिपेंडेंस, तो वी डिडंट फील लाइक कि पुटिंग आवर थॉट्स टू बी इन द पार्ट ऑफ योर एनवायरमेंटल थिंकिंग। प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। भारत को 1947 में आजादी मिली, ठीक है। We got independence in 1947. Is that correct? Is this line is correct? We got independence. We got independence in 1947. भारत को 1947 में आजादी मिली, ठीक है जी। हमने अचीव नहीं की आजादी, किसी ने दी थी। तो we are not saying we earned independence in 1947. We said we got independence in 19. Somebody gave us and we said okay, give it to us. Is it correct? Being an IAS thought, you should be very keen towards the words. क्या हमें आजादी मिली थी? हिंदी में भी हम कभी नहीं कहते हमने आजादी पाई या आजादी को जीता। हमने 1947 में आजादी मिली। मिली तो वो होती जो कोई देता है। मिली थी, अंग्रेज दे गए थे हमें आजादी की, लो संभाल लो अपनी आजादी। We fought for that. So why don't we correct that word? We earned independence in 1947. बताइए, कभी नहीं सोचा इस बारे में? आज सोचना कि एक वर्ड करेक्ट क्यों नहीं लग रहा आपको। हमें आजादी मिली, वी गॉट, मैंने दोनों बोला, इंग्लिश में बोला, हिंदी में भी बोला, पंजाबी में भी बोल सकते हैं। सानू 1947 आजादी मिली है ना। हमने कहीं भी नहीं कहा हमने जीती, हमें मिल गई, किसने दे दी। इसका मीनिंग being as an IAS student, if you are on an interview, that is to be very much judgmental answer from your side, to make a dicey things to yes to no. आपकी पर्सनल डिसीजन के बेसिस पे आपका पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। So please think about it and we will discuss someday else. Okay, so we said that in 1972 we got the thought of in Stockholm conference, that is into regarding the UNEP हमारा कॉन्फ्रेंस बना, जिसमें मेन पहली बार हमने एनवायरमेंट के बारे में सोचा। तो ये बस सिंपल सी एक लाइन है कि हाउ वी थिंक अबाउट, दैट वाज इन इनिशियली
1972 and that was Stockholm CHCK भी है साथ में HOLM and it was set up by UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए अगर लिखना है। Done. So that was in a first stage we think about it. First thought of environment came over them. Then what happened? Then they got to know in the second stage after time of 1972 in 1983 में हमने UN ने द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को क्रिएट किया और उस थॉट वो हमारा हुआ था ब्रेटन वुड कमीशन। उस कमीशन में हमने एनवायरमेंटल के लिए एक कमीशन बना दिया कि नाउ वी नीड टू सिट ऑल द कंट्रीज एंड वी विल प्रिपेयर सम कमेटी आउट ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इन 1983 हमने वो स्टार्ट किया। वो हमारी ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। तो आप ये जो बीच में मैं लिखूंगी ना वो सारी कॉन्फ्रेंसेज और सारी कमेटीज हैं जो किसी भी नाम किसी ईयर के साथ अटैच होके आपके क्वेश्चन में आ सकती है। सो सेकंड वाज इन 1983। जो हमारी सेकंड वाली थी वो थी हमारी ब्रुकलैंड कॉन्फ्रेंस और कमीशन बोलते हैं इसको वैसे हम, क्योंकि इसी कमीशन को बाद में हमने चेंज करके अर्थ समिट में शिफ्ट किया था। पहले वाली कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि उसमें हमने सिर्फ एजेंडाज रखे थे, वी हैवंट कम आउट विद सम कमेटी, बट इन द सेकंड वन जब हमने आए तो हमने उसको एक कमीशन का नाम दिया कि एक असेंबली बन गई है कि मेंबर ऑफ नेशंस आर कमिंग अप विद द वन कमेटी। सो दैट वाज इट इज अ कमीशन। And it was World Commission on Environment and Development. ये हमारा सेटअप हुआ। इस सेटअप में हम लोग इसको मतलब ये जो कमीशन था इस नाम से जाना जाता है, ब्रुकलैंड कमीशन इन 1983 एंड इट वाज वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1983 में स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने अपना जो पहला रिपोर्ट दिया था दैट वाज गिवन बाय दिस सेम ओनली इन 1987। They presented their report in 1987 सेम इन्हीं कमीशन ने, इस कमीशन ने अपनी जो लैंड रिपोर्ट दिया, इस जो प्रेजेंट की इस रिपोर्ट में इसका मेन था आवर कॉमन फ्यूचर। ये इस नाम से इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया जिसमें वो कह रहे थे कि वी नीड टू कम टुगेदर for the common future goal that was in to environmental safeguard. So that was in 1987 they have given their report into regarding to the environmental protection. Done. तो ये सिर्फ पहली बार बैठे कमीशन बनाया, कमीशन में अपनी रिपोर्ट 87 में दी और उसका मेन ऑब्जेक्टिव और टारगेट क्या था, आर कॉमन फ्यूचर। Then what happened in after 87 they started thinking about like we need to create some kind of policies and programs. सिर्फ इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एजेंडा हो सकता है। So in 80 हमारा 87 के बाद 1992 थी, 1992 में हमने फर्स्ट अर्थ समिट किया। अर्थ समिट उसको हमने नाम दिया। तो अर्थ समिट में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि एनवायरमेंटल, और उसके हमने मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, जिन 4 ऑब्जेक्टिव्स को ही हम फिर आगे सेकेंड अर्थ समिट एंड थर्ड अर्थ समिट तक कंटिन्यू करते गए। सो दैट वाज ऑन अ फोर्थ अर्थ समिट इन 1992।
First Earth Summit said it was regarding under United Nation Conference on Environmental and Development. वही वाला है, ये इसी का ही है, बस ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर आ गया. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, वही कॉमन वाला मैं इसके आगे ले रही हूँ. ठीक है जी. सो दैट वाज रिगार्डिंग द अर्थ समिट एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू मेन सस्टेन द रिसोर्सेज. उस सस्टेन रिसोर्सेज के लिए हमें क्या करना पड़ना था कि हमें जो जो कंट्रीज उसका मेंबर बनी उनके लिए कुछ टारगेट या कुछ ऑब्जेक्टिव सेटअप करने थे. तो हमने कहा कि पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द कॉमन, हमारा एक सबका मतलब एकजुट होकर काम करने का जरूरत है. ये नहीं कि एज वी कैन से अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लेशन, if that another country is doing, we cannot say na let you can do and you will suffer out of it. Every country will suffer from the same thing. So we cannot take it as a granted. अगर आप अपनी कंट्री में एनवायरमेंट की पॉलिसी लगाते हो तो ठीक है, हम नहीं लगाएंगे. तो हमें एक कॉमन एजेंडा के लिए दोनों सबको इकट्ठा होना पड़ रहा था. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था? इट इज टू पब्लिक अवेयरनेस ऑफ नीड एंड इंटीग्रेट एनवायरमेंट एंड sustainable development. It is to public awareness. It is to public awareness of need of integrated environment and sustainable development. Integration of कर लो, integration of, क्योंकि वो लाइन फिर स्पेसिफाइज नहीं होती. It is for the public awareness of the need of integration of environment and sustainable development. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सारी कंट्रीज को, लोगों को इस नीड की, इस इंपॉर्टेंस को अवेयर करना कि आपके लिए एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है. सो अंडर दिस समिट और वी कैन से दिस फर्स्ट UNECD की रिपोर्ट के अंदर हमने 4 चीजों को मेन एजेंडास के अंदर रखा. फर्स्ट वन वाज रियो डिक्लेरेशन. रियो डिक्लेरेशन अर्थ समिट 1992 के अंदर 4 चीजें आई थी. रियो डिक्लेरेशन, RIO. मेरे लिए आगे स्पेस नहीं बचेगा क्योंकि इसके लिए फिर बाकी सारों की भी लेनी है, तो मैं इसको आपको बता ही देती हूँ. रियो डिक्लेरेशन में हमने क्या किया? वी जस्ट वांट टू अवेयर एंड द गाइड ऑफ द पीपल अबाउट देयर फ्यूचर. हम कंट्रीज को सिर्फ बिठा के उनके बारे में डिक्लेयर कर रहे थे कि इट इज जस्ट लाइक अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड इट इज फॉर आवर कॉमन फ्यूचर. जो हमने यहाँ पर ये लेकर चले थे ऑब्जेक्टिव, उसी ऑब्जेक्टिव को लोगों को स्पेसिफाइड किया. सो इट इज टू गाइड द कंट्रीज फॉर देयर कॉमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Rio Declaration is to guide the countries for the common sustainable development, for the future sustainable development and the common sustainable development. दोनों आएंगी क्योंकि हम सबका equal rights रहने चाहिए sustainable development में. Next one was Agenda 21. Rio Declaration was one thing. Agenda 21. It was non-binding action plan of UN regarding SD. SD का मतलब अब सब जगह पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही समझिएगा. It was non-binding action plan of UN regarding sustainable development. Non-binding का मतलब है कि you were not supposed to bind in some उसमें contract में नहीं थे आप, but still you are being given some authority and you were given some knowledge. We were giving you a guidance regarding the future common goals. हम आपको किसी चीज के किसी contract के अंदर bind नहीं कर रहे थे. Third one was forest principle. Forest principle. It was again non-legally binding document.
नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट on conservation and SD sustainable development of all types of forests. इसका ऑब्जेक्टिव भी फॉरेस्ट को कंजर्व करना था, तो इसके अंदर भी वही था, SD of all types of forest. Last one is formation of UNFCCC. UNFCCC, United Nation promotions for environment on climate conservation of climate changes. CCC में आएगा conservation of climate changes. जो climate changes आ रहे हैं उनको कैसे कंजर्व करके रखना है. That was to be the formation of the new agency जो सिर्फ environment को नहीं कर रही, प्रोटेक्ट कर रही, बल्कि उनके कंजर्वेशन के बारे में भी बात कर रही है. So it was CCC, that is conservation of climate changes. ये चौथा एजेंडा था हमारे अर्थ समिट फर्स्ट का 1992 में. देखो अभी एक बात तो पहली तो है, रियो डिक्लेरेशन का मतलब था कि वी वर नॉट बाइंडिंग यू समथिंग, वी वर जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस कि हमारा कॉमन फ्यूचर है, उसके लिए हमें काम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी, टू गाइड. रियो डिक्लेरेशन इज टू गाइड. सेकेंड इज हमारा एजेंडा 21. एजेंडा 21 का मतलब क्या है? हाँ, वो तो उसके मीनिंग है ना. इट इज टू बी नॉन बाइंडिंग बिटवीन द कंट्रीज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. थर्ड वन वाज योर सेम एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वो भी नॉन लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि सारी सेविंग करनी है फॉरेस्ट की. और UNECCC बनाना, यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड द क्लाइमेट चेंजेस को. अभी एजेंडा 21 का मतलब क्या है? दैट एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी, उसका मीनिंग क्या होता है एजेंडा 21 का, कि 21st सेंचुरी के लिए हमारा आज का एजेंडा क्या रहेगा. तो एजेंडा 21 का मीनिंग अपनी लैंग्वेज में लिख लो. इट मीन्स द एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी. आप 1992 में थे ना जब ये बना? हाँ, तो हम उसको 21st सेंचुरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या टारगेट्स को लेना है. Getting? Then after it was second Earth Summit that happened in post this. इसको ये भी बोलते हैं, आफ्टर दिस भी बोलते हैं, इसको सेकेंड अर्थ समिट भी बोलते हैं. सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक, वैसे अर्थ समिट हम 3 कर चुके हैं. इट वॉज इन 2002, फिर आएंगे 2012. अर्थ समिट 2 फर्स्ट था. ऐसे लिख लो 2 या जैसे भी लिखना, ठीक है जी. इट सेज वी वर टॉकिंग अबाउट रियो +10. इसको रियो +10 भी बोलते हैं. 10 years after this, रियो 22 होगा, 12 होगा, रियो +20 वो 20 साल के बाद हो जाएगा. कि जो एजेंडा फर्स्ट समिट में रखे थे उसके 20 इयर्स तक आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या टारगेट्स आपने फुलफिल किए. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रियो +10, है ना. रियो क्या था? अबाउट द अवेयरनेस, कि हमने जब अवेयर किया लोगों को, उसके 10 साल के बाद उसका क्या रिजल्ट्स निकले, उसके 20 साल के बाद क्या रिजल्ट निकले. तो इसको आप इसी तरह से याद कर लो. फर्स्ट रियो है, सेकंड रियो है, थर्ड रियो. फर्स्ट इज 0, दिस इज 10 प्लस ये वाला जो होगा, ये अर्थ समिट जो होगा वो थर्ड होगा, +20 हो जाएगा. ठीक है जी. इट इज इन 2012. डन. नाउ जो हमारा पोस्ट यूनिसेड के बाद बना, ये 10 इयर्स के बाद था, 1992 के 10 साल के बाद था. इसमें इसका जो मेन हमारी जो कमेटी बनी थी, दैट वाज वर्ल्ड समिट ऑन एसडी. इसको क्या बोल, इसमें जैसे इसकी ये थी ना, इसका वर्ल्ड कमीशन था, इसका था वर्ल्ड समिट
ऑन एसडी, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो बार बार सेम बात हम करते रहेंगे, ठीक है। पहले इन्वायरमेंट पे चल रहे थे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ गए। अब नाउ ये सिर्फ 3 जो बार बार समिट्स के वर्ड यूज होते हैं, इस समिट का जो प्लेस था वो था साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। तो ये इसका टाइम और इसकी जो हमारी कमीशन बना और इसका जहां पर ये हुआ, ये तीनों चीजें एक ही सेंटेंस में आके वो हमें गलत या सही डाल सकते हैं। गेटिंग? बिफोर फाइनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब तक अब बने हैं, उससे पहले तक के 4 पॉइंट्स आ सकते हैं कोई भी, कि रियो 10 जो था वो 2012 में आया, ठीक है। जो रियो 2002 था वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, ठीक है। रियो 10 में हमने UNECCC को कैप्चर किया। एजेंडा 21 जो था वो हमारा अर्थ समिट 3 में आया। आर यू गेटिंग? कैसे कोरिलेट कर रहे हैं हम लोग? तो ये जो जहां पर हुआ था, इट वाज इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। इसके साथ इसका प्लेस लिख लीजिए, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। इसके साथ एक वर्ड और लिख लीजिए, दैट इज UN एजेंसी ऑन एजेंडा 21 प्लस मल्टी मिलेनियर डेवलपमेंट गोल्स, दोनों को ऐड कर दिया। अभी तक सिर्फ हम एजेंडा 21 लेकर चल रहे थे 1992 के समिट में। 2002 के समिट में हमने मिलेनियर डेवलपमेंट गोल्स को भी ऐड कर लिया। तो MDG प्लस एजेंडा 22 दैट वाज टू बी कंसीडर्ड अंडर दिस सेकेंड हमारा जो 2002 का जो एजेंडा था, ठीक है जी। UN एजेंसी ऑन एजेंडा 21 प्लस MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उन दोनों को ही इसमें डिस्कस किया, ठीक है जी। एंड वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने लिख दिया। लास्ट 4th वन है, इन 2012 दैट वाज अर्थ समिट 3 रियो +20, ये हो गया ना। इसके नेक्स्ट वाला हमारा रियो +20 हो गया। ये था हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, और इसके भी कॉन्फ्रेंस का नाम होगा ना। हमेशा जब भी कोई मीटिंग होगी उसका कोई नाम रखा जाएगा ना, कोई कॉन्फ्रेंस का नाम रखा जाएगा। तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Are you getting it? नाम देखो आपस में बदले जा रहे हैं। पहला था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, फिर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले वाला वर्ड इसका ले लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका ले लिया। तो इट इज जस्ट लाइक अ शिफ्टिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस नेम, ईयर्स एंड द एजेंडास। गेटिंग? सो दैट रियो +20 समिट, ये हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वाज आफ्टर 20 years of the starting of the first Rio agenda, and that happened into Brazil. रियो डी जेनिया, रियो RIO स्पेस GE, आप पूरा लिख लो वर्ड्स। वैसे तो हम इसको सिर्फ ब्राजील की कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, बट इफ यू वांट टू राइट एंड जैसे जोहान्सबर्ग लिख दिया तो साउथ अफ्रीका लिखने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस वेयर इट हैपेंड। डन? सो इट वाज हैपेंड इन ब्राजील। रियो समिट इसलिए बोला जाता था क्योंकि रियो डिक्लेरेशन पहली बार भी ब्राजील में ही हुई थी, जो पहली 1992 की थी। गेटिंग? उसका भी लिख लो, वो भी 1992 वाली भी ब्राजील की थी। रियो डी JANCI, जनाइका, JANCIA। इट इज ऑफ द सेकेंड वाली जोहान्सबर्ग की है, फर्स्ट वाली भी ब्राजील की है, थर्ड वाली भी ब्राजील की है। रियो डी जेनेका। डन? अभी जो ये वाला समिट था 2012 का, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बर्थ हुआ। इट वाज अ बर्थ प्लेस और द बर्थ
year considered to be the SDGs, but actually वो सिर्फ birth हुआ, mean to say they was just talking about that हमें सिर्फ वो एजेंडा 2020, एजेंडा 21 और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर नहीं चलना पड़ेगा, हमें कुछ और नया सोचना पड़ेगा. So they started talking about the SDGs. So that was the year when we started taking SDGs to be taken a birth over there. ठीक है. So it is a SDGs are taken birth in Rio 20 में start हुआ था उसका birth. After that हमारे पास आए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, the last 2015. Whenever we talk about 8 targets, अभी जो हमारे टारगेट्स हैं वो somewhere somehow उन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स में से निकल के आए हैं, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी के थे, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के हैं ये भी डेवलपमेंट के, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के नहीं है. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है किसी इकोनॉमी को पहुंचाने के लिए जो गोल चाहिए, सस्टेनेबिलिटी का कि जो पहुंच गया उसको रोकने के लिए गोल चाहिए. तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे कि सारी इकोनॉमी, सारी मिलियन जो कंट्रीज हैं, वो जो लोग हैं, वो कैसे डेवलपमेंट के पाथ पे पहुंचेगी. जब उनको वो अचीव कर लोगे फिर आपने उसको सस्टेन करना है. तो अभी जब आपने यही वाले गोल रखने हैं तो आप सिर्फ उन्हीं काम पे करोगे. क्या? हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इक्वालिटी, जेंडर, वही चीजें हैं. तो 8 कंपोनेंट्स आर देयर. First one is eradication of poverty and hunger. Eradication of poverty and hunger, first important thing that is to be discussed under the MDGs. Eradication of poverty and hunger, promotion gender equality, and women empowerment. Gender equality and women empowerment. अभी जो तीनों कंपोनेंट्स होंगे वो सारे हेल्थ के आ रहे हैं. कौन सा? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases. Combat HIV, AIDS, malaria and other diseases. ये 3 आपके हेल्थ के कंपोनेंट हो गए, मदर हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड द कॉमन हेल्थ. नेक्स्ट इज, चलाए, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. एक चीज उन्होंने एनवायरमेंट की भी डाल दी. सो वी हैव टेकन 3 to 4 कंपोनेंट्स फॉर द हेल्थ, 1 फॉर जेंडर इक्वालिटी, 1 फॉर पॉवर्टी एंड फॉर ऑल. एक है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. एक हेल्थ हो गया, एक एजुकेशन हो गया, एक जेंडर हो गया, एक एनवायरमेंट हो गया, एक पॉवर्टी एरेडिकेशन हो गया, प्राइमरी एजुकेशन. एंड द लास्ट इज डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट. Develop a global partnership for development. Last, we're done. Develop a global partnership for development. कि वर्ल्ड इकोनॉमीज को इकट्ठे होना पड़ेगा तभी वो सारे ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को फुलफिल कर सकते हैं. So you can recall these all words like 3 are forming from the health, maternal, child and all the common health, HIV, AIDS and all. ये तीनों हेल्थ के हो गए. एक एजुकेशन का हो गया, प्राइमरी अचीवेबल एजुकेशन टू ऑल. एक हो गया एनवायरमेंट का. ये सब मिलकर काम करेंगे तो ठीक होगा. एक जेंडर का हो गया. तो 8 कंपोनेंट्स which is to be the part of goals, not indicators. These are the 8 goals and 21 targets, and the further we have 60 indicators to achieve the MDGs. यहां तक हमने प्रायर द स्टोरी ऑफ SDGs की बात की है. अभी इसके बाद खैर एक थोड़ा सा और चेंज आया था जिसमें हमने PEC पेज की बात की, PAGE की बात की है. लेटर ऑन वी जस्ट केम टू द पॉइंट ऑफ द SDGs, क्योंकि जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने अचीव करने शुरू किए उसके अंदर हमें कुछ रेडिकेशंस करने की जरूरत पड़ी. कुछ कंपोनेंट्स बहुत कम थे, बहुत माइन्यूटेड थे, कुछ एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था. तो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दे वर टॉकिंग अबाउट ओनली द रिसोर्सेज.
नेचुरल रिसोर्सेज, बट लेटर ऑन दे सेड दैट सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, जो हमारे इकोसिस्टम है, जो डिग्रेडेबल रिसोर्सेज है, उनको भी प्रिजर्व करने की जरूरत है. दैट्स व्हाई दे हैव एडेड अ मेनी ऑफ द अदर गोल्स टुगेदर. इंडस्ट्री को भी ले लिया, हेल्थ को भी ले लिया, एजुकेशन को भी ले लिया, बायोडाइवर्सिटी को भी ले लिया, एनवायरमेंट के ओशंस को भी ले लिया, इनोवेशन को भी ले लिया. सो लेटर ऑन वी हैव इंक्लूडेड मेनी मेनी गोल्स. एक एक गोल को हम बस सिर्फ नाम याद करेंगे, हम उनको उसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे. सो आफ्टर दैट लिखिए पेज, PAGE कैप्स में लिखिएगा, PAGE कैप में पेज. पार्टनरशिप फॉर एक्शन on green economy. Partnership for action on green economy. That was in 2013. No doubt it is before the MDGs. In 2013, and it was response to the Rio Plus 20 declaration. It was a response to Rio Plus 20 declaration. और इसका जो मेन पर्पस था वो था द फ्यूचर वी वांट. जैसे हमने वो लिखा है ना, द कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर था, इसका हमारा बना द फ्यूचर वी वांट. इसमें उन्होंने कहा कि हम लोग सारी कंट्रीज को असिस्ट किया. इट इज टू असिस्ट द कंट्रीज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030, कि 2030 के एजेंडा को हम लोग को सबको मिलकर पूरा करना है. इट इज टू असिस्ट कंट्रीज इन अचीविंग SDGs 2030 एजेंडा, स्पेशली SDG 08. के टारगेट को अचीव करने के लिए बोला था. देखो ये अभी हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, उसमें हमने कहा कि हम SDG, क्योंकि हमने आपसे बोला कि 1992 में वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट SDGs. सो इन 2013 व्हेन वी गो थ्रू विद द MDGs एंड फॉर ग्रीन इकोनॉमी की बात की, उसमें हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि समवेयर समहाउ वी नीड टू हैव अचीव सम टारगेट्स ऑफ SDGs. और कौन सा गोल हमने अपने सामने रखा? 8 नंबर गोल. 8 नंबर गोल किस चीज का था? इकोनॉमिक ग्रोथ का. वो मॉनेटरी टर्म्स की बात करता है, एनवायरमेंट वाला नहीं है. सो SDGs जो 8 था, दैट इज अबाउट द डिसेंट वर्क एंड ग्रोथ. तो वो ग्रोथ वाले कंपोनेंट को 2030 तक अचीव करने की बात कर रहे हैं. डन. सो दिस इज ऑल अबाउट टिल द पॉइंट ऑफ योर introduction of your SDGs. So how the history comes out with the SDG, that is the part of it. Now we started with the SDG. अब हमारा SDG भी start हुआ है, ठीक है? So SDG agenda was accepted by all the member countries under the UN meeting in 2012. But in actual, it started making its work on 2015. SDGs were implemented in successful plan for the 15 years. 2015 में उन्होंने start किया, 12 में सभी कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड 15 में दे स्टार्टेड मेकिंग अप टारगेट्स. और उनके जो टारगेट्स थे वो अगले 15 साल के लिए थे. तो दे हैव एजेंडा 2030. 2015 में स्टार्ट किया ना टारगेट बनाने, तो उन्होंने 15 इयर्स के टारगेट, जैसे हमारी प्लानिंग 5 साल की होती है, ये जो हमारे टारगेट्स थे ये 15 इयर्स के थे. तो उसमें जो हमने एजेंडा क्रिएट किया, दैट वाज एजेंडा 2030, दैट वी हैव टू अचीव व्हाटएवर द टारगेट्स वी हैव बाय द 2030. गेटिंग? सो SDGs were to implement after the success of 15 planned development colonies MDGs. उनके प्लान को 15 साल के अंदर हमने पूरा करना है. एक जो हमने 2012 में भी हमने वहीं किया, ब्राजील में ही किया, जो मीटिंग किया, उसमें जो हमारा काउंसिल में जो मीटिंग था, उसका जो ऑब्जेक्टिव हमने रखा वो लिख लीजिए. टू प्रमोट हेल्दी एंड डेवलप्ड फ्यूचर, to promote healthy and developed future, to promote healthy and developed future of the planet and its people, of the planet and its people, healthy and developed future of the planet and its people.
SDGs आर ऑफिशियली नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या बोला जाता है? ग्लोबल गोल्स बोला जाता है, और इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड कॉलन the 2030 agenda for sustainable development. I repeat, sustainable development goals, officially known as global goals or transforming our world colon the 2030 agenda for sustainable development. हमें इन गोल्स को 2030 तक अचीव करना है. सेम एज वी हैव हाउ मेनी गोल्स? 17 goals, 169 target and 232 indicators. इसके भी ऐसे लिख लो. ये MDGs के हैं, ये SDG के हैं. 17 targets goal, 169 targets and 232 indicators. और इसको जो सेट करता है वो है UN जनरल असेंबली. इन 2015 में हमने इसको टारगेट किया है और इसको 2030 तक हमने पूरा करने के लिए लिखा है इन गोल्स को. अभी जब हम इसमें इंडिया की वो लिखेंगे, रिपोर्ट लेंगे, फिर उसमें हम बताएंगे कि कौन सी कंट्री ने कितने अचीव कर लिए गोल्स आउट ऑफ 17 गोल्स में से. ठीक है, जैसे हमने कल किया था, in which we said that it is the goal, we have done the 3 goals in which we said that it is a goal 8.2, 3.5. This is all about the India's sustainable development goal. इंडिया भी सेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही अपने डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पे यूज करता है, बट उसके जो इंडिकेटर्स हैं फर्दर, जैसे 8.1, 8.2, 8.3, 6.1, 6. उन गोल्स में अब उसने स्टेट लेवल कंपैरिजन भी आ गया, और स्टेट लेवल कंपैरिजन में भी हमने 2022 की रिपोर्ट में देखा है कि हमने 3 टारगेट्स को ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है. एक तो मेन हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले को, सेकेंड हमने ये इसको जो हमने गैस की अवेलेबिलिटी टू ऑल कर दिया है, एंड 1 मोर टारगेट वी हैव अचीव्ड. व्हिच वन इज? टैप वाटर नहीं है, आई थिंक एक और है, लेट मी चेक इफ इट इज देयर. हमने अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी एंड सैनिटेशन, एंड द वन इज द मैटरनल मोर्टेलिटी, ऑल वैक्सीनेशंस. हमने वैक्सीनेशंस को, क्योंकि हमने इसमें भी तो कहा है ना कि हमें मेन 3 डिजीजेस को खत्म करना है, मलेरिया एंड ऑल, तो उसके लिए हमने वैक्सीनेशंस इतनी क्रिएट कर दी कि हम उस टारगेट को अचीव करने लग गए हैं. पहले अगर एक टाइम पे अगर ये एपिडेमिक आता था इस तरह का, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन गॉट इन्फेक्टेड आउट ऑफ इट, बट बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन नाउ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज बीइंग इफेक्टेड इज कंपैरेटिवली लेसर. तो वो हमारे लिए कहीं बेनिफिट हो रहा है कि हम टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं. So now we will start with the SDGs. These are the goals, these are the indicators, these are the indicators and the whatever the things are there. Now we will take individually one goal and we'll talk about what we are talking about the goal. Goal का नाम से समझ आ जाएगी. इससे पहले I would say you should divide the goals into 5 P's. Write down the 5 P's on the left hand side. Five P stands for whatever the P stands for, people, prosperity, that 5 P's. So first of all we are talking about is a people, prosperity, planet, peace and partnership. You need to learn these 5 or you can make a story again. अगर लोग पार्टनरशिप के साथ रहेंगे तो शांति रहेगी, वो ग्रो करेंगे और प्लेनेट अच्छा हो जाएगा. ठीक है, अगर लोग
पार्टनरशिप के साथ रहेंगे तो शांति रहेगी, आप लोग ग्रो करेंगे और पूरा वर्ल्ड ठीक हो जाएगा. सो यू कैन टॉक अबाउट लाइक 5P stands for first of all people they should have a good partnership so that they can live peacefully. पीसफुली रहेंगे तो प्रोस्पेरिटी होगी, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी ठीक हो जाएंगे. आप चाहो तो इसको ऐसे 1 2 3 4 5 लगा लो, जरूरी नहीं है. ये मैंने इसलिए लगाए क्योंकि वो गोल्स का नंबर कम होता जा रहा है, इसलिए मैंने इस सेंस से लगाए. आप इसको कैसे भी लगा सकते हो, दैट्स योर विश. डन. सो अंडर दिस वी हैव डिफरेंट 17 गोल्स है ना. इसको 17 गोल्स को इसके अंदर डिवाइड कर दिया ताकि हमारे को याद करना आसान रहेगा कि प्रोस्पेरिटी के अंदर कितने लोग, कितने कंपोनेंट्स आए, पीपल के अंदर कितने कंपोनेंट्स आए. सो वी आर टेकिंग 6 4 5 4 6 4 5 1 1 6 4 5 1 1.